रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से करियर 21 के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय एजुकेशन फेयर शनिवार से शुरू हुआ, जिसका आयोजन रानीगंज के शराब धर्मशाला में हुआ। इसका उद्घाटन शिक्षाविद BK सिंह, संजीव सिंह, डॉक्टर शिवब्रतो बैनर्जी, संदीप सिन्हा, सूर्य सरकार, डॉक्टर महेंद्र जैन, फौज बेकी के अध्यक्ष RP खैतान प्रमुख रूप से किए। इस एजुकेशन फेयर में रानीगंज और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उनके भविष्य के बारे में विशेषज्ञ करियर सलाहकारों द्वारा उनके करियर को लेकर स्टॉल लगाए गए। इस बारे में करियर 21 के BK सिंह ने बताया कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आयोजित इस एजुकेशन फेयर का उद्देश्य रानीगंज और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर मार्गदर्शन देना है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ग्रेजुएशन स्तर की भी पढ़ाई कर चुके विद्यार्थियों को भी उनके भविष्य जीवन के लिए मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं। आज की तारीख में विभिन्न प्रकार के नए नए कोर्स आ गए हैं, जिनके माध्यम से एक विद्यार्थी अपने लिए एक सुनहरा भविष्य बना सकता है, चाहे वह साइंस का विद्यार्थी हो, कॉमर्स का या फिर आर्ट्स का। हर माध्यम से विद्यार्थी के लिए यहाँ पर विशेषज्ञ सलाहकारों की टीम द्वारा करियर काउंसलिंग की सुविधा है। वहीं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खैतान ने कहा कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही है। इस एजुकेशन फेयर से इस अंचल के लोग लाभान्वित हुए। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय ने कहा कि इस मेले का उद्देश्य छात्र 12वीं की परीक्षा पास करके अपना करियर कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, आगे का भविष्य तय करने के लिए जो कि प्रक्रिया है, इस दिशा में यह मेला कारागार रहेगा। देश के कोने कोने से बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, पुणे सहित 21 इंस्टीट्यूशन यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान ने इस प्रकार के एजुकेशन मेले के आयोजन रानीगंज में पहली बार होने की बात कही और वहीं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने भी पूरे फेयर की विस्तृत जानकारियां ली। রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের এক বিশেষ প্রয়াস এবং উদ্যোগে আজকে রানীগঞ্জের আমরা এসেছি খনি শহর রানীগঞ্জের সিআর রোড স্থিত সীতামণি ভবনের ঠিক সারাপ ভবনে। এখানে এডুকেশন ফেয়ার রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের তরফ থেকে এডুকেশন ফেয়ার 2023 এই সারাপ ভবনে লাগানো হয়েছে। বিভিন্ন শহর থেকে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহর থেকে, যেমন দেরাদুন, রুড়কি, কলকাতা, দিল্লি এসে এখানে বিভিন্ন প্রিন্সিপালেরা এসেছেন এবং ফ্যাকাল্টিসরা এসেছেন। তারা 10+12 12 পাস করার পর স্টুডেন্টরা তাদের কোন পথে যাবে, কি তারা সাবজেক্ট নিয়ে পড়বে এবং কি দিক নির্দেশ, এই দিক নির্দেশগুলি বিশেষভাবে ওনারা তুলে ধরবেন। এখানে কেরিয়ার কাউন্সেলিং এবং অ্যাডমিশন যে গাইডেন্স, এই ব্যাপারটি বিশেষ এই ব্যাপারটির উপর বিশেষ তাদের দৃষ্টি নজরদারি। এবং তারা রানীগঞ্জ শহরতলির বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রায় 17টা-18টা স্কুল আছে, ইংলিশ মিডিয়াম, নন ইংলিশ মিডিয়াম, সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন স্কুলের স্টুডেন্টরা আজ ইতিমধ্যে তারা পৌঁছেছে এবং তাদের নাম নথিভুক্ত করছে। এবং তারা যে ক্যাম্পগুলো ভিতরে লাগানো হয়েছে, সেই ক্যাম্পের মাধ্যমে তারা নিজের নাম নথিভুক্ত করে সেখানে ফ্যাকাল্টিসদের সাথে কথা বলবেন এবং তারা নিজেদের কেরিয়ার সম্বন্ধে সচেতন হবেন, তারা কোন পথে যাবে না যাবে। রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এই বিশেষ উদ্যোগ আজকে নিয়েছে। আমরা আসুন আরও বিস্তারিতভাবে জেনে নেব যে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের যে দ্বারা যিনি প্রেসিডেন্ট আছেন তার সাথে কথা বলে দু দিবসীয় এই প্রোগ্রামে আর কি বিশেষ তারা স্টুডেন্টরা, কলেজ শহরের স্টুডেন্টরা আর কি জিনিস পাবে, আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন। আমি সব সুন্দর উদ্যোগকে, বিশেষ করে মেগা এডুকেশন ফেয়ার এবং কেরিয়ার 21 এতগুলো আপনারা শুনলেন, বিস্তারিতভাবে বললেন আমার আগে বক্তা। তো আমরা আগে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যদি আমরা বর্তমানে আমরা পড়ছি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, যে আমাদের সঠিক লক্ষ্যে আমরা যদি না পৌঁছাতে পারি তাহলে আমাদের সেই শিক্ষার কোনো দাম থাকে না। তাই আমাদের যে সেই এমটা in this program, and special thanks to the President Raniganj Chamber of Commerce, Mr. Arun Bhartiya ji, and also he is the chairman of the Education Committee. She is the principal of Raniganj SKS Public School. So I am well known of this so many activities of this Raniganj Chamber of Commerce, which feels me very happy that Raniganj Chamber of Commerce they do not only the business, along with that they correlate with the education, which I feel very comfortable and proud, because my concern is only education, proper guidance to the children, and surely we guide the children up to class 2. So after class 2 it's very difficult to guide them, because you know that most of the previous generation, the old people mindset is any student gets success, to be a doctor or engineer is a success, otherwise failure.
but the in charge of the admin. वो सब सम्मान के पात्र है, पूजनीय है, अभिनंदन के पात्र है, जिनके प्रयास के बिना, जिनके सहयोग के बिना रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये हमारा इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। एक पूर्व वक्ता ने कहा है कि इस तरह का कार्यक्रम शायद रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहले कभी नहीं किया है। ये सत्य है, ये घटना है। कैरियर काउंसलिंग के ऊपर इतना बृहद कार्यक्रम इतनी विश्वविद्यालयों, इतनी कॉलेजों, इतने विद्यालयों को अपने साथ समेटकर। देखिए, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स मूलतः व्यवसायियों की एक संस्था मानी जाती है, किंतु हम लोगों का जो कार्य का क्षेत्र है वह व्यवसायी हित से बढ़ के एक सामाजिक हित में भी अपने आप को लेके चलता है। आज का जो समय है जहाँ पर हर तरफ प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक भविष्य को लेकर एक आशंका रहती है और एक जानकारी का अभाव रहता है कि व्हाट आफ्टर 12th, व्हाट आफ्टर 10th। उसकी जवाब के लिए, उसके समाधान के लिए हम लोगों ने प्रथम एक उद्योग लिया है। आशा करते हैं ये सक्सेसफुल रहेगा। यहाँ पर पेरेंट्स, गार्जियंस, स्टूडेंट्स आएंगे, उनको अपनी जो शंकाएं हैं उनका समाधान यहाँ इतने जो स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ घूम के मिलेगा। वह और एक गाइडेड डिसीजन लेने की पोजीशन में होंगे कि हमें क्या करना है, कि इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, ये 3 परिधि से निकलकर दुनिया और भी आगे बढ़ चुकी है। मल्टीपल कोर्सेज, एक स्ट्रीम में मल्टीपल कोर्सेज है। आपको जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है उससे इंटरेस्ट का क्या कोर्स है वो यहाँ आप आके समझ पाएंगे। तो मेरी तो शिल्पांचल वासियों से यही रिक्वेस्ट है कि इस अवसर का लाभ उठाएं, आएँ। संस्था है इनका, हमारा काम ही है कि हम लोग जगह जगह पे जाएं और ऐसा एजुकेशन फेयर कंडक्ट करवाएं जिससे जो लोकलाइज स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, जो भी अक्रॉस द कंट्री अच्छे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन है, उनमें डिफरेंट टाइप के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे मीडिया साइंस हुआ, लॉ हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, MBA हुआ, MHA कोर्स हुआ, पैरामेडिकल कुछ कोर्सेज हुए, तो वो स्टूडेंट को मतलब मौका मिलता है कि किस कॉलेज में कौन सा कोर्स करने से कैसा उनका प्लेसमेंट होगा। और उनको जैसे कोई बायो लेकर पढ़ रहे हैं तो पैरामेडिकल कोर्सेज में जैसे वो रेडियोलॉजी लेकर पढ़ सकते हैं, BMRIT लेकर पढ़ सकते हैं, नर्सिंग लेकर पढ़ सकते हैं, फार्मेसी लेकर पढ़ सकते हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी लेकर पढ़ सकते हैं। कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो BBA इन बैंकिंग एंड फिनांस ले सकते हैं, BCom इन बैंकिंग एंड फिनांस ले सकते हैं। कोई आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट हैं वो मीडिया साइंस में जा सकते हैं। कोई वासियों को यही बोलना चाहूँगा कि यदि ये 2 दिन वो नहीं जागे, 7 और 8 जनवरी तो आगे भी जागने का मौका उनको जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस थे सबको हमने एक ही रूफ के अंदर प्लेटफॉर्म पे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंडर में बुलाया है। और यहाँ पे आज वो यदि आके अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जो भी जानकारी लेना चाहे उनसे ले सकते हैं, उनके कोर्स के बारे में जान सकते हैं, उनके कोर्स के फ़ी के बारे में जान सकते हैं, जो कि उनके लिए बेंगलोर, पुणे, महाराष्ट्र, देहरादून जाना संभव नहीं है। और इसीलिए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कैरियर फेयर में मैं यही बोलूँगा कि जो भी बच्चे या जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के कैरियर के बारे में चिंतित है वो एक बार 7 या 8 जनवरी को ज़रूर विजिट करें। कितने स्टूडेंट अभी तक पार्टिसिपेट किए हैं इस कैंप में? अभी तक सुबह से हमारे पास 400 से 500 स्टूडेंट्स की विजिट हो चुकी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 से 2,500 बच्चे हमारे इस फेयर में आएंगे। आपका नाम, डेजिग्नेशन? मेरा नाम अरुण भरतिया, मैं चेयरमैन एजुकेशन कमेटी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।